Hello students, in this lecture we will do some examples on difference operator and learn about displacement operator and discuss its properties. First example is evaluate del n sine square x, that is nth forward difference of sine square x. We can write sine square x as 1 minus cos 2x over 2, that is 1 by 2 minus cos 2x over 2. We know difference operators are distributive over addition or subtraction. So we can write it as del n 1 by 2 minus 1 by 2 del n cos 2x. Also we know difference of a constant is 0. तो यहाँ 1 by 2 constant है तो del n 1 by 2 हमारा 0 हो जाएगा माइनस 1 by 2 del n cos 2x. We know del n cos cx plus d is 2 sin ch by 2 raised to the power n cos cx plus d plus n ch plus pi by 2. Comparing this with this, we have c equals to 2 and d equals to 0. Substitute कर देंगे यहाँ वैल्यू, that is 2 sin c के प्लेस पे 2, 2h over 2 raised to the power n cos 2 in place of c, तो यहाँ 2x हो जाएगा, d is 0 plus n into ch plus pi by 2. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, that is minus 2 raised to the power n over 2 sin raised to the power n h cos 2x plus n into 2h plus pi by 2. We can further write it as this. Next example, evaluate del x into log x. Now this is of the form del fx into gx. Compare this with del fx into gx. We have fx equals to x and gx equals to log x. And we know del fx into gx equals to fx plus h into del gx plus gx into del fx. Now fx is this and we know del fx is fx plus h minus fx. So fx plus h from this is x plus h minus fx is x. So this is h. And del gx is gx plus h minus gx. Gx plus h is log x plus h minus gx is log x. So this is log x plus h over x. Substituting the values here, we have del fx is x, gx is log x, fx plus h is x plus h, del gx is log x plus h over x, gx is log x and del fx is h. So this is del x into log x. Next example, evaluate del x square plus sin x, the interval of differencing being alpha. Here we have to find out first forward difference of x square plus sin x और यहाँ पर interval of differencing हमें अल्फा दे रखी है. अब तक जितने हमने एग्जाम्पल किए उनमें interval of differencing हमारी x थी, यहाँ पर गिवन है हमें अल्फा. Consider del x square plus sin x. We know difference operator is distributive over addition, तो हम यहाँ लिख सकते हैं del x square plus del sin x using this del f plus g equals to del f plus del g. Now del x square is x plus alpha square minus x square. We know del fx is fx plus h minus fx. तो यहाँ del x square फाइंड आउट करना है. del x square हमारा क्या हो जाएगा, x में x अल्फा ऐड कर देंगे, दैट इज x प्लस अल्फा स्क्वायर. हम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग ऐड करते थे, यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हमारी अल्फा है, तो यहाँ x प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. एंड डेल साइन एक्स इज साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस साइन एक्स. ओपन दिस होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2x अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन सी माइनस साइन डी का हमने यहाँ रिजल्ट लगा दिया. सिंप्लीफाई कर दिया इसको फर्दर, वी हैव 2x अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2
cos x plus alpha by 2। फर्दर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज cos थीटा इज sin 90 plus theta। नेक्स्ट एग्जांपल, evaluate del 2x over x plus 1 factorial, the interval of differencing being unity। हमें फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है 2x over x plus 1 factorial का, जहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हमें यूनिटी गिवन है, मीन्स 1 गिवन है। We know del fx over gx is gx into del fx minus fx into del gx over gx plus h into gx। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंपेयर करेंगे, यहाँ fx हमारा 2x 2 रेज टू द पावर x हो जाएगा, gx हमारा x प्लस 1 फैक्टोरियल, gx ये है, gx प्लस h हमारा gx प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि h हमें गिवन है यहाँ पर 1 के इक्वल। gx प्लस 1 इस रिजल्ट से हमारा x प्लस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज दिस। सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ वैल्यू, fx इज 2x, gx इज x प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू gx इज x प्लस 1 फैक्टोरियल डेल fx। डेल fx हमारा क्या हो जाएगा, we know del fx is fx plus h minus fx। अगर h इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हो, यहाँ इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हमारी 1 है, तो हमारा fx plus 1 minus fx हो जाएगा। fx plus 1 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 raised to the power x plus 1 minus fx is 2x minus fx is 2x। del gx हमारा क्या हो जाएगा, gx plus 1 minus gx। gx ये है, gx plus 1 हमारा x plus 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और gx is x plus 1 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज x plus 1 फैक्टोरियल, 2 raised to the power x कॉमन कर लेंगे, वी आर लेफ्ट with 2 minus 1 here minus 2x and this is x plus 2 into x plus 1 factorial minus x plus 1 factorial over x plus 2 factorial into x plus 1 factorial। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज 2x x plus 1 factorial minus 2 raised to the power x plus 1 factorial into x plus 1 over x plus 2 factorial x plus 1 factorial। यहाँ से x plus 1 factorial हमने कॉमन कर लिया, कॉमन करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, then we have del 2x over x plus 1 factorial equals to minus x 2x over x plus 2 factorial। Next is shift operator। शिफ्ट ऑपरेटर और वी कैन से इट एज डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल ई से। शिफ्ट ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं ई एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच। ये क्या कर रहा है, एफ एक्स पे अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे हैं तो ये एक्स से जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है मीन्स एक्स प्लस एच, उस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेगा। मीन्स एक्स को ये शिफ्ट कर देता है एक्स प्लस एच पे, उस पे फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ई वाई ए इक्वल्स टू वाई ए प्लस एच। मीन्स आप अगर शिफ्ट ऑपरेटर वाई ए पे लगा रहे हैं तो जो ए से नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा ए प्लस एच, उस पे फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट होके हमें दे देगा शिफ्ट ऑपरेटर। मीन्स जो आर्ग्यूमेंट पे हमने फाइंड आउट करना है शिफ्ट ऑपरेटर, उस आर्ग्यूमेंट से नेक्स्ट वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू हमें दे देगा शिफ्ट ऑपरेटर। हियर वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। फर्स्ट इज शिफ्ट ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज ई एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल्स टू ई एफ एक्स प्लस ई जी एक्स। मीन्स शिफ्ट ऑपरेटर हमारा ओवर एडिशन विद डिस्ट्रीब्यूटिव है। कंसीडर की लेफ्ट हैंड साइड ई एफ एक्स प्लस जी एक्स, वी नो by definition of E we can write it as fx plus h plus gx plus h। E की definition है ये, fx की वैल्यू क्या रहती है fx plus h, gx की वैल्यू gx plus h और fx plus h को हम लिख सकते हैं e fx, gx plus h को लिख सकते हैं e gx। तो इसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको रिजल्ट को जनरलाइज भी कर सकते हैं, दैट इज ई ऑफ एफ प्लस जी प्लस एच इक्वल्स टू ई एफ प्लस जी प्लस ई एच। सेकेंड इज E and the constant are commutative, that is E into C fx equals to C into E fx। मीन्स E और C को आप इंटरचेंज कर सकते हैं।
लेफ्ट साइड कंसीडर की हमने E इंटू सी एफ एक्स। डेफिनेशन लगाई शिफ्ट ऑपरेटर की। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, x को रिप्लेस कर देगा x प्लस एच से, तो यहाँ क्या आ गया सी एफ एक्स प्लस एच। नाउ हमें पता है एफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होता है, ई एफ एक्स के, तो यहाँ हमने ई एफ एक्स लिख दिया, दैट इज सी इंटू ई एफ एक्स। तो ई इंटू सी हमारा हो गया सी इंटू ई के। थर्ड प्रॉपर्टी, operator E obeys the law of indices, that is e raised to the power m into en fx equals to e m plus n into fx। मीन्स fx पे हमने ऑपरेटर en ऑपरेट किया पहले, फिर em ऑपरेट किया, तो हमें शो करना है वो अगर हम fx के ऊपर em plus n ऑपरेट करें उसके इक्वल आएगा। नाउ वी नो e fx is e fx plus h। नेक्स्ट ई स्क्वायर एफ एक्स इज ई इंटू ई एफ एक्स। यहाँ ई स्क्वायर का मतलब है कि ई दो बार ऑपरेट किया है, पहले ई ऑपरेट किया, ई एफ एक्स हमें पता है एफ एक्स प्लस एच के इक्वल है, देन हमने अगेन ई ऑपरेट कर दिया, ई ऑपरेट करने के बाद ये अगेन इससे जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है उस पे फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करेगा, इससे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट मीन्स एक्स प्लस एच दैट इज एफ एक्स प्लस टू एच। So EFX is x plus h, E square fx is fx plus 2h। अब हम E क्यूब fx करेंगे, E क्यूब fx हमारा E स्क्वायर fx इंटू ई, इस पे हम E ऑपरेट कर दे, दैट इज E क्यूब आ जाएगा, E स्क्वायर fx इज fx प्लस 2h, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब ई एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू एफ एक्स प्लस टू एच प्लस एच दैट इज एफ एक्स प्लस थ्री एच। तो जो हमारा ई एफ एक्स था वो एक्स एफ एक्स प्लस एच के इक्वल है, ई स्क्वायर एफ एक्स हमारा एफ एक्स प्लस टू एच के इक्वल है, ई क्यूब एफ एक्स हमारा एफ एक्स प्लस थ्री एच के इक्वल है। तो अगर हम इसको जनरलाइज कर ले तो हमारा ई एन एफ एक्स प्लस एन एच के इक्वल हो जाएगा। नाउ ई m इंटू ई एन एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास एफ एक्स प्लस एन एच। ई एम क्या हो जाएगा, एम एच और ऐड कर देगा इसके आर्ग्यूमेंट में, मीन्स एफ एक्स प्लस एन एच ऑलरेडी है, प्लस एम एच ऐड कर देगा। बाय दिस ये क्या कर रहा है, ई एन आर्ग्यूमेंट में एन एच ऐड कर रहा है, ये हमारा ई एम आर्ग्यूमेंट में एम एच ऐड कर देगा, दैट इज एफ एक्स प्लस एम प्लस एन एच। और इसको हम लिख सकते हैं ई एम प्लस एन एफ एक्स, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा हमारा, मीन्स ई एम इंटू ई एन इज ई एम प्लस एन, दैट इज दिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ई ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स इक्वल्स टू ए ई एफ एक्स प्लस बी ई जी एक्स। नाउ कंसीडर लेफ्ट साइड, दैट इज ई ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स। हमें पता है हमारा ई डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही थी कि एडिशन में अगर दो टर्म्स है तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं ई अप्लाई करके। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है ई और सी कम्यूट करते हैं, मींस ई और सी को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किया है कि हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं ई ए एफ एक्स प्लस ई बी जी एक्स। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारा, ई और कांस्टेंट कंप्यूट करते हैं, ई ए को हम ए ही लिख सकते हैं, ई बी को हम बी ई लिख सकते हैं, यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पर हमने जस्ट दो प्रॉपर्टीज का यूज किया है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का पहले दैट ई इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सेकंड ई इज कम्यूटिव। नेक्स्ट इज ई एंड डेल्टा आर कम्यूटेटिव, that is E delta is identical equal to delta E, means E और डेल्टा कम्यूट करते हैं, हमें ये प्रूव करना है। लेफ्ट साइड कंसीडर की E del एफ एक्स, वी नो del एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और हमें पता है E हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बाय लास्ट प्रॉपर्टी,
अगर यहाँ पर हम b की जगह -1 ले ले, a की जगह 1 ले ले, fx को fx माइनस h ले ले, gx की जगह fx ले ले, तो हमारा ये रिजल्ट बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं e fx प्लस h माइनस e fx, e डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड वी नो e fx प्लस h इज fx प्लस 2h, और e fx को लिख सकते हैं fx प्लस h। अब हम डेल e fx कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर डेल ई एफ एक्स। पहले ई ऑपरेट होगा एफ एक्स पे, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच। अब डेल ऑपरेट करेंगे, जब डेल ऑपरेट करेंगे एफ एक्स प्लस एच पे, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच। तो हमारा डेल ई एफ एक्स हमारा ई डेल एफ एक्स के इक्वल आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगी। दैट इज ई डेल एफ एक्स इक्वल्स टू डेल ई एफ एक्स। That is E del is identically equals to del E. Next property, if del fx equals to 0, then neither del is identically equals to 0 nor fx equals to 0. Means अगर del fx 0 है, it means ना ही del identically 0 है, ना ही fx. Now del fx equals to 0, इट मीन्स फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट का फॉरवर्ड डिफरेंस 0 होता है, तो फंक्शन कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स ना ही डेल 0 हुआ और ना ही हमारा एफ एक्स 0 हुआ। यही प्रूव करना था कि डेल एफ एक्स 0 है तो ना डेल 0 हो ना एफ एक्स 0 हो। डेल एफ एक्स 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट फंक्शन है तो ना ही डेल 0 हुआ ना ही एफ एक्स 0 हुआ। नेक्स्ट इज prove that E is identically equals to 1 plus delta. Here we have some relation between shift operator, forward difference operator, backward difference operator. Now we know del fx is fx plus h minus fx, or we can write del fx equals to fx plus h को लिख सकते हैं e fx minus fx। अब यहाँ पर ई एफ एक्स को हम लिख सकते हैं डेल एफ एक्स प्लस एफ एक्स, इसको हम लेफ्ट साइड लेंगे, तो यहाँ पर ई एफ एक्स हमारा क्या आ गया डेल प्लस 1 एफ एक्स, दैट इज ई इज आइडेंटिकली इक्वल टू डेल प्लस 1। दीज आर सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, आप इनको ध्यान रखेंगे कि ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। सेकेंड, प्रूव दैट backward difference operator equals to 1 minus e raised to the power minus 1. Now consider del fx, sorry नेपला fx। नेपला fx हमारा किसके इक्वल हो जाएगा fx minus fx minus h। by definition fx is this। अब यहाँ पर fx minus h हमारा क्या हो जाएगा e इनवर्स fx। ई आपका शिफ्ट कर देता है नेक्स्ट ऑपरेटर पे, ई इनवर्स आपका देखो ई एम क्या होता है एफ एक्स प्लस एम एच। ई रेस टू द पावर एम एफ एक्स हमारा किसके इक्वल होता है एफ एक्स प्लस एम एच, तो ई माइनस 1 एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच। तो यहाँ पर एफ एक्स माइनस एच को हम लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर माइनस 1 एफ एक्स, एफ एक्स कॉमन करके हमने लिख दिया 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 1 एफ एक्स, दैट इज नेपला इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 1। नेक्स्ट रिजल्ट, नेपला इज आइडेंटिकली इक्वल्स टू del E inverse. Now del fx is fx minus fx minus h by definition। अब यहाँ से इसको अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस की टर्म में लिखे, डेल एफ एक्स माइनस एच हमारा क्या होगा एफ एक्स माइनस एच बाय डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस में हम क्या लिखते हैं, अगर डेल एफ एक्स है तो उसको हम क्या लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यहाँ डेल एफ एक्स माइनस एच है तो हमारा एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। नाउ
E inverse fx equals to fx minus h. By using result E m fx equals to fx plus mh. तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी. So we have Napla equals to del E inverse. So we have discussed here some properties. In the next lecture we will do some example based on it. Thank you.